Okay, so hello everyone, welcome back to my channel. A Flowering Tree, A Woman's Tale. So, I have already uploaded a brief explanation on this story, A Flowering Tree, on which I have just explained the important points of the story. But now, in this video, we'll be covering this story line by line, okay, and dialogue by dialogue. So, let's get started. The story starts from the heading that is A Flowering Tree, A Woman's Tale, A.K. Ramanujan. A.K. Ramanujan was a renowned poet, critic, folklorist, and one of the most eminent scholars of South Asian language and culture. A recipient of the MacArthur Fellowship, he was also a legendary translator. Many of his later writings were available in the Oxford Indian Ramanujan. For many years, Ramanujan taught at the Department of South Asian Language and Literature, University of Chicago. His chief academic contribution was in revealing that in addition to the great high culture tradition of Sanskrit, India had thousands of years of rich and sophisticated folk culture in such languages as Tamil and Kannada. In the essay included in this unit, his analysis of the woman's tale told by a woman to other women demonstrate his own sensitivity to women's culture. So this is the brief introduction which is given about the author, or I can say the translator, because this story was originally being written in the Kannada language, but later on it was translated into English by A.K. Ramanujan. So A.K. Ramanujan was he was a renowned poet, critic, or a folklorist, and he is the most of the eminent scholars of the South Asian language and culture. He has the MacArthur Fellowship, and he was also a legendary translator. So he used to translate the stories of his regional language to the English, and later his translated stories or writings were available in the Oxford India Ramanujan. He has taught at the department, उन्होंने साउथ एशियन लैंग्वेज लिटरेचर डिपार्टमेंट में पढ़ाया है यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में. उनका जो अकेडमिक कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ही ज़्यादा संस्कृत से रिलेटेड और ओरिएंटेड है. ही हैज़ थॉट कि इंडिया की जो रिचनेस है और जो फोक कल्चर है वो कितना ज़्यादा रिच और डाइवर्स है, नॉट इन लैंग्वेजेस बट इन पर्सपेक्टिव्स ऑल्सो. और ये जो स्टोरी है उनकी वुमेन्स टेल में उन्होंने बताया कि किस तरीके से एक वुमेन को डेमोन्स्ट्रेट किया जाता है वुमेन्स के कल्चर में, उसकी क्या पोजीशन है हमारी सोसाइटी में या फिर इंडियन सोसाइटी और डायस्पोरा में. सो दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर. Where men are protagonists, especially in tales of quest, women are secondary. They are usually part of the prize along with half a kingdom. So जहाँ पर men protagonists होते हैं, main हमारे characters होते हैं, वहाँ पर mostly जो खजाने या फिर women's होती हैं वो secondary हो जाते हैं, because they are just the prize for winning a land or something. So they are just a prize which will come along to the winner with the kingdom. Sometimes they help the hero in his quest for the magic flower, or do this daring do, get the milk of a tigress or whatever, and to slay the ogre, qualifying him to marry her or receive his half of the kingdom. और अगर आप किसी लैंड को जीतते हैं तो वहाँ की जो वुमेन्स होती हैं वो ऑब्वियसली कॉन्करिंग वाले किंगडम के किंग की हो जाती हैं. बट अगर आप वॉर नहीं करते हैं, सो यू मेड अ मैरिज टाई बिटवीन देम, कि यहाँ पे अगर हम शादी कर लेंगे तो यहाँ से हमारे रिलेशंस बन जाएंगे और यहाँ की लड़कियाँ हमारी हो जाएंगी. These stories end in marriage, for they speak of emancipation of the hero from the parental yoke of the setting up of a new family as he comes into his own. But in woman-centered tales, the heroine is already married, or she is married early in the tale, and then the woman's troubles begin. In the tale called The Crab Prince or The Fish Prince, the young woman is often sold or married to a wild, murderous animal bridegroom, and the rest of the story tells you how she made him human, handsome and gentle. ठीक है, तो जहाँ पर मेन हमारे अगर टेल्स मेन हमारी मेन से रिलेटेड होती हैं, जहाँ पर हमारे प्रोटोगेनिस्ट मेन होते हैं, वहाँ पे सिर्फ मेन के पर्सपेक्टिव से वो पूरी स्टोरी चलती है. जहाँ पर हमारी वुमेन सेंटर टेल्स होती हैं, वहाँ पर मोस्टली क्या दिखाया जाता है कि जो हमारे प्रोटोगेनिस्ट होते हैं या जो हीरोइन होती हैं वो या तो पहले से ही मैरिड होती हैं या फिर बहुत जल्दी उनकी शादी हो जाती है कहानी में, और वहाँ से उनके फिर ट्रबल स्टार्ट होते हैं आफ्टर द मैरिज. लाइक इसमें एग्जांपल दिया गया है, एक स्टोरी है द क्रैब प्रिंस और द फिश प्रिंस, जहाँ पर दिखाया गया है कि यंग वुमेन को बेच दिया जाता था या उनकी शादी करवा दी जाती थी फ्रॉम
to a person who behaves like an animal to them, and then she converts those people into humans. So this is what happens in women centered tales. I'd like to talk today of a tale that speaks of a woman's creativity, her agency, and the way it is bound up with her capacity for speech. The rest of the paper will speak in some detail of one story, a flowering tree, collected in several versions in Karnataka over the last 20 years by me and fellow folklorist. Here is the story. So, this is the introduction which is given by A.K. Ramanujan. He said that today he will speak of a tale which speaks about women's creativity and which speaks from a woman's perspective other than what is shown earlier by the writers. Because अभी हमने देखा कि जहाँ पर हमारे प्रोटोगेनिस्ट मेन होते हैं वहाँ पे मेन के हिसाब से उनके पर्सपेक्टिव और पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी पूरी कहानी चलती है. वुमेन सेंटर टेल्स में मोस्टली ये दिखाया जाता है कि किस तरीके से वुमेन ट्रांसफॉर्म करती हैं उनके हस्बैंड्स को या फिर उनके लवर्स को. बट दिस इज अ स्टोरी और अ टेल विच टॉक्स अबाउट वुमेन्स क्रिएटिविटी, हाउ ही एजेंसिफाई हर सेल्फ विद अदर पीपल एंड how he has a capacity for her own speech. So this is a story, and he said that there are several versions of this story in Karnataka, and this had been written by many folklorists also. So the story is a flowering tree. We are moving on to it now. In a certain town, the king had 2 daughters and a son. So there is a town जहाँ पर एक king है, 2 daughters हैं और उनका एक लड़का है. The older daughter was married. The older daughter of the king was married. उनकी शादी हो चुकी थी. In the same town there lived an old woman with her 2 daughters. और उसी टाउन में एक old woman रहती हैं जिनकी 2 बेटियां हैं. She did menial jobs to feed and clothe and bring up her children. वो बहुत ही छोटी छोटी odd jobs करती हैं जिससे वो अपने बच्चों का livelihood sustain कर सकें. When the girls reached puberty, the younger sister said one day, "Sister, I have been thinking of something. It's hard on mother to work all day for our sakes. I want to help her. I will turn into a flowering tree. You can take the flowers and sell them for good money." जब जो दोनों लड़कियां होती हैं वो प्यूबर्टी हिट कर जाती हैं या फिर वी कैन से दैट दे आर ऑलमोस्ट ऑफ टीनेज एज, तो जो यंगर सिस्टर होती है वो अपनी बड़ी सिस्टर से ये बोलती है कि नाउ सिस्टर, अब हमें कुछ करना चाहिए बिकॉज हमारी जो मदर है वो बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं हमारे लिए और हमें भी उनकी हेल्प करनी चाहिए. ऐसा करते हैं कि मैं एक फ्लावरिंग ट्री में कन्वर्ट हो जाती हूँ, तुम उससे ट्री से फ्लावर्स लेना और फिर हम उन्हें पैसों के बदले बेचेंगे. Amazed, the older sister asked, "How will you turn into a flowering tree?" अब उसकी बात सुनकर जो ओल्डर सिस्टर होती है वो बहुत ही ज़्यादा एकदम से चौंक जाती है. वो पूछती है कि तुम फ्लावरिंग ट्री में कैसे बदलोगे. I will explain later. You first sweep and wash the entire house, then take a bath, go to the well and bring 2 pitchers full of water, said the younger sister. जो तो छोटी वाली बहन होती है वो ये बोलती है कि वो मैं तुम्हें बाद में एक्सप्लेन करूँगी, तुम पहले पूरे घर को अच्छे से झाड़ू लगा दो, पोछा लगा दो, ठीक है. जस्ट स्वीप एंड वॉश और मॉप द एंटायर हाउस. फिर बाथ लेने के बाद वेल से 2 pitchers फुल ऑफ वाटर ले आओ, यानी कि 2 मटके पानी के भरे हुए ले आओ. The older sister listened to her carefully, swept and wiped and cleaned and took a bath and brought 2 pitchers of water without touching them with her fingernails. So without touching them fingernails, this was not mentioned in the instructions of the younger sister, but we will also include this. तो जो older sister होती है वो अपनी younger sister की पूरी बात सुनती है और वो सब कुछ साफ करके झाड़ू वगैरह लगा के वाइप करके क्लीन करके नहा कर 2 pitchers ले आती है वाटर के, बिना उन्हें अपनी fingernails को टच करे हुए. Right in front of their house stood a tall tree. The sisters swept and wiped the ground under it too. Both girls then went there and the younger one said, "Sister, I will sit under this tree and meditate. Then you will pour the water from this pitcher all over my body. I will turn into a flowering tree. Then you pluck as many flowers as you want, but do it without breaking a sprout or tearing a leaf. When you are done, pour the water from the other pitcher over me and I will become a person again." तो उनके घर के बिल्कुल सामने एक बहुत बड़ा पेड़ था, तो उनकी जो बड़ी बहन थी उन्होंने वहाँ पर भी साफ़ सफाई की थी.
तो दोनों लड़कियां जो होती हैं वो वहाँ पर जाती हैं, और जो छोटी वाली लड़की होती है वो ये बोलती है कि सिस्टर नाउ मैं इस पेड़ के नीचे बैठूंगी और मैं मेडिटेट करूंगी, देन तुम एक पिक्चर का जो पानी है मेरे ऊपर डालना, जब मैं मेडिटेट कर रही होंगी तो मैं एक फ्लावरिंग ट्री में कन्वर्ट हो जाऊंगी, और फिर तुम मेरे में से जितनी मर्जी चाहे उतने फ्लावर्स वहाँ मेरे से प्लग कर लेना, और जब तुम अपने सारे फ्लावर्स प्लग कर लो तो दूसरे पिक्चर का पानी मेरे ऊपर डाल देना, तो मैं फिर से एक पर्सन या ह्यूमन बन जाऊंगी फ्रॉम अ फ्लावरिंग ट्री। द यंगर सिस्टर सैट डाउन एंड थॉट ऑफ द लॉर्ड। जो यंगर सिस्टर, जो छोटी बहन होती है, वो बैठती है और भगवान के बारे में सोचने लग जाती है। द ओल्डर वन पोर्ड वाटर फ्रॉम द फर्स्ट पिक्चर ऑल ओवर हर सिस्टर। जो बड़ी बहन होती है वो फर्स्ट पिक्चर में से सारा पानी अपनी बहन के ऊपर डाल देती है। एट वंस हर सिस्टर चेंज इनटू अ ग्रेट बिग ट्री दैट सीम टू स्ट्रेच फ्रॉम अर्थ टू हेवन। और एक ही बार में उसकी जो बहन होती है वो एक इतने बड़े ट्री में बन जाती है जो कि ऐसे लग रहा था कि वो अर्थ से लेके हेवन तक जा रहा है। द ओल्डर सिस्टर plucked the flowers carefully without hurting a stalk or sprout or leaf। और जैसे कि उसको इंस्ट्रक्शन दिए गए थे कि तुम एक भी ब्रांच, लीफ, स्टॉक या स्प्राउट को मत तोड़ना अदर देन द फ्लावर, तो बहुत ही केयरफुली जो बड़ी बहन होती है वो उन फ्लावर्स को बहुत ही केयरफुली और कॉशियसली उन फ्लावर्स को तोड़ती है। आफ्टर शी हैड इनफ टू फिल अ बास्केट और टू, शी एम्प्टीड द सेकेंड पिक्चर ऑफ वाटर ओवर द ट्री। और जब उनकी एक या दो बास्केट पूरी भर जाती हैं, उनके पास इनफ फ्लावर्स हो जाते हैं, तो वो सेकेंड पिक्चर का पूरा पानी उसके ऊपर डाल देती है। एंड द ट्री बिकम अ ह्यूमन बींग अगेन। और जो ट्री होता है वो फिर से एक ह्यूमन बींग बन जाता है। एंड द यंगर सिस्टर स्टूड इन इट्स प्लेस। और वहाँ पर ट्री की बजाय अब उसकी छोटी बहन वहाँ पर खड़ी हुई है। शी शुक द वाटर फ्रॉम हर हेयर एंड स्टूड अप। और वो अपने बालों से उस पानी को ऐसे झड़काती है और खड़ी हो जाती है। दे बोथ गैदर्ड द फ्लावर्स इन बास्केट्स एंड ब्रॉट देम होम। और वो दोनों उन फ्लावर्स को इकट्ठा कर कर घर पर ले आते हैं। द फ्लावर्स हैज़ अ वंडरफुल फ्रेग्रेंस। उन फ्लावर्स की जो फ्रेग्रेंस थी, जो स्मेल थी, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। दे वोव देम इनटू गार्लैंड्स। और उन्होंने फिर उन फ्लावर्स के गार्लैंड्स बनाए, यानी कि मालाएं बनाई। वेयर शैल आई सेल देम आस्क्ड द एल्डर सिस्टर। तो जो बड़ी बहन होती है कि मैं इन्हें कहाँ पर बेचूं, वो उससे पूछती है। सिस्टर, वाई नॉट टेक ऑल देम टू द किंग्स पैलेस, दे विल पे वेल। मदर इज ऑलवेज डूइंग सच ऑफुल जॉब्स फॉर आवर सेक, लेट्स पाइल अप सम मनी एंड सरप्राइज हर, सेड द यंगर वन। तो जो छोटी बहन होती है कि सिस्टर, हम एक ऐसा काम करते हैं कि हम किंग्स पैलेस में जाकर इन फ्लावर्स को बेचते हैं, और वो वैसे भी वो किंग है तो वो हमें बहुत अच्छे खासे पैसे देंगे। हमारी मदर हमेशा हमारे लिए इतने ऑफुल, पिटिफुल और जॉब्स करती रहती हैं, तो कुछ पैसा हम इकट्ठा करते हैं और फिर उनको सरप्राइज देते हैं। सो द ओल्डर सिस्टर took the basketful of garlands before the king's palace and hogged her wares, crying, flowers, flowers, who wants flowers। तो जो older sister होती है वो उन basketful of garlands को लेकर जाती है in the front of the king's palace, and there she begins to hog, या फिर वहाँ पे वो बोलने लगती है बहुत जोर जोर से, flowers, flowers, who want flowers। The princess looked out and said, Mother, mother, the flowers smell wonderful, buy me some। तो जो प्रिंसेस होती हैं किंग की, वो ये बोलती हैं, वो अपनी मदर से बोलती हैं कि द फ्लावर्स विच द गर्ल इज सेलिंग दे स्मेल वंडरफुल, सो गेट मी सम। ऑल राइट, कॉल द फ्लावर गर्ल, सेड द क्वीन। तो जो क्वीन होती है कि ठीक है, तुम उस फ्लावर गर्ल को बुलाओ। दे बोथ लुक्ड एट द फ्लावर्स एंड दे वर लवली। द क्वीन आस्क्ड, हाउ मच डू यू वांट फॉर दीज। तो क्वीन एंड प्रिंसेस, वो जो दोनों होती हैं, वो उन फ्लावर्स को देखती हैं और वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर और बहुत ही अच्छे स्मेल कर रहे होते हैं। तो क्वीन इनसे पूछती हैं, कितने लोगी तुम इन फ्लावर्स के। वी आर पुअर पीपल, गिव अस वट एवर यू विश, सेड द ओल्डर सिस्टर। तो जो बड़ी बहन होती है वो ये बोलती है कि हम बहुत गरीब लोग हैं, जो आप देना चाहते हैं हम ले लेंगे। दे गेव हर हैंडफुल ऑफ कॉइन्स एंड बॉट ऑल द गार्लैंड्स। तो जो क्वीन होती है वो उन्हें कुछ हैंडफुल ऑफ कॉइन्स देती हैं और सारी जो मालाएं होती हैं उनके फ्लावर्स की, उनको खरीद लेती हैं। When the older sister came home with the money, the younger one said, Sister, sister, don't tell mother, hide it, don't tell anyone। तो जब वो बड़ी बहन वापस आती है पैसों के साथ घर पर, तो यंगर सिस्टर होती है वो ये बोलती है कि तुम मदर को मत बताना, इसको छुपा के रखो, अभी तुम किसी को मत बताओ ये बात कि हमने किस तरीके से इन फ्लावर्स को बनाया है रिचुअल के थ्रू और किस तरीके से हमने इन्हें बेचा है। They sold flowers like this for 5 days and they had 5 handful of coins। और इसी तरीके से उन्होंने 5 दिन के लिए उन फ्लावर्स को बेचा और 5 हैंडफुल ऑफ कॉइन्स, यानी कि 5 मुट्ठी भर कॉइन्स उनके पास आ गए। शैल वी शो दिस टू मदर, आस्क्ड वन। उनमें से एक बहन ही बोलती है कि क्या अब हमें अपनी मदर को दिखा दें। नो नो, शी विल गेट एंग्री इन बीट अस, सेड द अदर। द 2 गर्ल्स वर ईगर टू मेक मनी। तो वो कहती है कि नहीं नहीं, अभी मत दिखाओ, वो हम पे बहुत गुस्सा करेंगी और फिर वो हमें मारेंगी।
एक ही कहती है। तो दोनों लड़कियां जो होती हैं वो पैसा बनाने चाहती थी, वो अपनी मदर को सरप्राइज करना चाहती थी, उन्हें सपोर्ट करना चाहती थी, और उन्हें एक डर था कि अगर उनकी मदर को पता चलेगा सो शी विल गेट एंग्री एंड बीट देम, सो इस वजह से वो उन्हें नहीं बताती हैं। वन डे द किंग्स सन सॉ द फ्लावर्स। एक दिन क्या होता है कि किंग का जो बेटा होता है वो उन फ्लावर्स को देख लेता है। दे स्मेल्ड वंडरफुल। तो एज ऑब्वियसली और टोल्ड अर्लियर, जो फ्लावर्स हैं उनकी फ्रेग्रेंस जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। ही हैड नेवर सीन सच फ्लावर्स एनीवेयर। और जो प्रिंस था उन्होंने ऐसे फ्लावर्स को कहीं देखा भी नहीं था अपने पूरे किंगडम में। व्हाट फ्लावर्स आर दीज, ये कौन से फ्लावर्स हैं, वेयर डू दे ग्रो, ये कहाँ पर उगते हैं, एंड ऑन व्हाट काइंड ऑफ ट्री, और कैसे पेड़ पर उगते हैं, हु ब्रिंग्स देम टू द पैलेस, इन्हें महल में कौन लेके आया। ही वंडर्ड, वो ये सब चीज़ें सोचने लगा। He watched the girl who brought the flowers. फिर उन्होंने उस लड़की को देखा जो उस फ्लावर्स को लेकर आती थी। One day he followed her home to the woman's house. और फिर एक दिन उन्होंने उसे फॉलो करा अपने घर में, टू दैट वुमेन्स हाउस, बट ही कुडेंट फाइंड अ सिंगल फ्लावरिंग ट्री एनीवेयर। लेकिन उस घर के आसपास उन्हें कोई भी एक सिंगल फ्लावरिंग ट्री नहीं मिला। ही वॉज क्वाइट इंट्रीग्यूड, और इस बात को देखकर उन्हें बहुत ही ज़्यादा इंट्रीग्यूड यानी कि कन्फ्यूजन हुई, क्यूरोसिटी उठी। ऑन हिज वे होम ही टायर्ड हिमसेल्फ आउट नथिंग, वेयर ऑन अर्थ डू दे गेट सच फ्लावर्स। और जब वो उनके घर से वापस अपने पैलेस की तरफ जा रहे थे, सो ही वॉज टायर्ड ऑफ थिंकिंग दैट इस पूरी अर्थ पर वो कहाँ से ऐसे फ्लावर्स लेकर आ रहे हैं जब ये हमारी पूरी किंगडम में है ही नहीं, और ऐसा कोई पेड़ हमारे पूरे किंगडम में है ही नहीं। Early the next morning, while it was still dark, the king's son went and hid himself in the tall tree in front of the old woman's house. और अगली ही सुबह जब बहुत ज़्यादा अंधेरा हो रहा था, तो जो प्रिंस था वो अपने आप को एक बड़े से पेड़ के पीछे छुप जाता है, बड़े से पेड़ के पीछे छुप जाता है जो कि उस ओल्ड वुमेन के हाउस के पास था। That day too the girls swept and washed the space under the tree. और उस दिन भी उन लड़कियों ने उस जगह, पेड़ के नीचे की जगह को साफ किया। As usual the younger girl became the flowering tree, and after the older one had gently plucked all the flowers, the tree became the young woman again. और फिर इसी तरीके से उन्होंने उस रिचुअल को परफॉर्म करा विद द हेल्प ऑफ दोज पिचर्स ऑफ वाटर। और ओल्डर सिस्टर जो थी उन्होंने उन सारे फ्लावर्स को प्लग करा, और बाद में वो ट्री एक यंग वुमेन में कन्वर्ट हो गया। द प्रिंस सॉ ऑल दिस हैपन बिफोर हिज वेरी आइज। और प्रिंस ने ये सब चीज़ें अपनी आंखों से अब देख ली थी। ही केम स्ट्रेट होम एंड ले ऑन हिज बेड फेस डाउन। वो सीधा अपने घर आया और आकर अपने बेड पर लेट गया। हिज फादर एंड मदर केम टू फाइंड आउट व्हाट द मैटर वाज। और फिर बाद में उन्होंने ये बात अपने मदर और फादर को भी बता दी। ही डिडंट स्पीक अ वर्ड। उन्होंने एक शब्द नहीं बोला। द मिनिस्टर्स सन हिज फ्रेंड केम एंड आस्क्ड हिम। तो वहाँ पे महल में जो मिनिस्टर था उनका बेटा जो कि प्रिंस का दोस्त था वो आया और उन्होंने प्रिंस से पूछा व्हाट हैपेंड, क्या हुआ है, डिड एनीवन से समथिंग दैट हर्ट यू, क्या किसी ने तुमसे ऐसा कुछ कहा है जिससे तुम्हें बुरा लगा है, व्हाट डू यू वांट, तुम्हें क्या चाहिए, तुम मुझे बता सकते हो, यू कैन टेल मी। द प्रिंस टोल्ड हिम बिट बाय बिट अबाउट द गर्ल टर्निंग इनटू अ फ्लावरिंग ट्री। इज दैट ऑल? उसके बाद जो प्रिंस होते हैं वो उस मिनिस्टर के बेटे को जो कि उनका दोस्त है उन्हें वो सब चीज़ें बता देता है, बिट बाय बिट, छोटी से छोटी चीज़ें बता देता है कि किस तरीके से वो लड़की एक फ्लावरिंग ट्री में कन्वर्ट हो जाती है। तो जो मिनिस्टर का सन होता है कि बस इतनी सी बात है, इज़ दैट ऑल, एंड सेंड फॉर द ओल्ड वुमेन। और फिर कहता है कि ठीक है तुम उस ओल्ड वुमेन को बुलाओ। वो ओल्ड वुमेन आती है जो कि मदर है ऑफ दोज टू डॉटर्स। शी अराइव शेकिंग विद फियर। उन्हें डर लग रहा था कि उन्हें क्यों महल में बुलाया गया है। शी वॉज ड्रेस्ड इन ओल्ड क्लोथ्स एंड स्टूड नियर द डोर। तो वो बहुत ही पुराने कपड़ों में खड़ी थी और वो पुराने कपड़ों में थी और वो डोर के पास आकर खड़ी हो जाती है। आफ्टर मच परसुएशन शी सैट डाउन। और कुछ परसुएशन के बाद उन्हें बिठाया गया। द किंग काम्ड हर। जो किंग है उन्हें दिख रहा था कि वो कितनी ज़्यादा हाइपर है, परेशान है, तो उन्होंने उसे शांत कराया एंड सॉफ्टली आस्क्ड हर यू हैव 2 गर्ल्स एट योर प्लेस, विल यू गिव अस 1। तो जो किंग जो है वो पहले उन्हें शांत कराते हैं और बहुत ही आराम से सॉफ्टली उनसे पूछते हैं कि तुम्हारे पास 2 लड़कियां हैं घर में, क्या तुम हमें एक दोगे? द ओल्ड वुमेन्स फियर गॉट वर्ड्स। अब जो ओल्ड वुमेन होती है वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। हाउ डज द किंग नो अबाउट माई डॉटर्स, कि किस तरीके राजा को मेरी लड़कियों के बारे में कैसे पता है। वो ये सोचने लगी। शी फाउंड हर वॉइस विद डिफिकल्टी एंड स्टैमर्ड ऑल राइट मास्टर, फॉर अ पुअर वुमेन लाइक मी गिविंग अ डॉटर इज नॉट एज ग्रेट अ थिंग, इज इट एज यू आर आस्किंग फॉर वन, इज इट एज यूर आस्किंग फॉर वन। तो जो वुमेन होती है वो बोलती है कि ऑल राइट मास्टर, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरी जैसी गरीब औरत को अगर आप एक डॉटर लेना चाहती हैं मेरे लिए तो वो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, क्या आपको सिर्फ मेरी एक बेटी चाहिए?
The king at once offered her betel leaf and betel nut, that is tambula, ceremonially on a silver plate as a symbolic offer of betrothal, and she was afraid to touch it, but the king forced it on her and sent her home. एंड जो किंग हैं वो उन्हें बीटल लीव और बीटल नट देते हैं फॉर अ सेरेमनी विच इज़ कैरिड ऑन मे बी व्हेन अ रिलेशनशिप गेट फिक्स एट दैट टाइम इन दैट किंगडम. तो वो उसे छूने के लिए भी बहुत ज़्यादा अफ्रेड थी, बट किंग ने उन्हें फोर्स किया लेने को और फिर वो उसे लेके अपने घर चली जाती है. बैक होम शी पिक्ड अप अ ब्रूम एंड बीट हर डॉटर, शी स्कोल्डेड देम. और घर आते ही जो ओल्ड वुमेन होती हैं वो अपनी दोनों लड़कियों को बहुत ज़्यादा डांटती हैं और विद द हेल्प ऑफ अ ब्रूम दे बीट दैम. You bitches, where have you been? The king is asking after you. Where did you go? And by referring them to the four words, she said that तुम दोनों लड़कियां कहाँ थी. जो किंग है वो तुम्हारे बारे में पूछ रहे हैं, तुम कहाँ गई थी. द पुअर गर्ल्स डिडंट अंडरस्टैंड व्हाट वाज हैपनिंग. अब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है. दे स्टूड देयर क्राइंग. वो वहाँ पर खड़े होकर रोकर कह रही थी कि अम्मा वाई आर यू बीटिंग अस, वाई आर यू स्कोल्डिंग अस, कि तुम हमें क्यों मार रही हो, तुम हमें क्यों डांट रही हो. हु एल्स कैन आई बीट, वेयर डिड यू गो, हाउ डिड द किंग हियर अबाउट यू. फिर वो कहते हैं कि तुम्हें नहीं तो मैं फिर किससे मारूं, कहाँ गए थे तुम और किंग को तुम्हारे बारे में कैसे पता है. द ओल्ड वुमेन रेज्ड ऑन. अब उनका गुस्सा और ज़्यादा बढ़ जाता है. द टेरिफाइड गर्ल्स स्लोली कन्फेस टू व्हाट दे हैव बीन डूइंग. और फिर जो दोनों लड़कियां जब बहुत ज़्यादा डर जाती हैं तो वो पूरी सच्चाई बता देती हैं कि वो किस तरीके से क्या क्या काम कर रही थी. दे शोड हर देयर 5 हैंडफुल ऑफ कॉइन्स. और वो उन्हें दिखा देती है हैंडफुल ऑफ कॉइन्स जो कि उन्हें किंग्स पैलेस से मिले थे. How can you do such things with an elder me sitting in the house? What's all this talk about human beings becoming trees? Who's ever heard of it? Telling lies to show me how you become a tree. वो कहते हैं कि तुम ऐसी चीज़ें कर कैसे सकती हो जब कोई इतना बड़ा इंसान मेरे जैसा घर में बैठा हुआ है, मुझे बिना बताए तुम ऐसे काम कैसे कर सकते हो. और ये क्या कहानी बना रहे हो कि किस तरीके से इंसान ट्रीज में कन्वर्ट हो जाता है. क्या किसी ने कुछ ऐसा सुना है? और ऊपर से तुम झूठ भी बोल रहे हो. दिखाओ मुझे तुम कैसे एक ट्री में कन्वर्ट होते हो. शी स्क्रीम्ड एंड बीट देम सम मोर. और फिर वो बहुत ज़्यादा चिल्लाती हैं, उन्हें और ज़्यादा डांटती हैं और उन्हें मारती हैं. फाइनली टू पैसिफाई हर द यंगर सिस्टर हैड टू डेमोन्स्ट्रेट इट ऑल. और उन्हें शांत करवाने के लिए जो यंगर डॉटर होती है, जो यंगर सिस्टर होती है, छोटी बहन, वो उन्हें दिखाती है कि किस तरीके से वो एक ट्री में कन्वर्ट होती है. शी बिकेम अ ट्री एंड देन रिटर्न टू हर नॉर्मल ह्यूमन सेल्फ राइट बिफोर हर मदर्स आई. तो वो उसी रिचुअल के थ्रू विद द हेल्प ऑफ द पिक्चर ट्री में कन्वर्ट होती है और बैक टू द ह्यूमन फॉर्म आ जाती है. नेक्स्ट डे द किंग्स मैन केम टू द ओल्ड वुमेन्स हाउस एंड आस्क्ड हर टू अपीयर बिफोर द किंग. और अगले ही दिन राजा के जो आदमी होते हैं वो आते हैं उस बूढ़ी औरत के घर पर और उनसे बोलते हैं कि द किंग हैज़ कॉल्ड यू. द ओल्ड वुमेन वेंट एंड सेड योर हाइनेस व्हाट डू यू वांट ऑफ मी. तो जो ओल्ड वुमन होती है वो किंग पैलेस में जाती है और पूछती है कि योर हाइनेस आपको मुझसे क्या चाहिए. द किंग आंसर टेल अस व्हेन वी शुड सेट द डेट फॉर द वेडिंग. तो किंग उनसे पूछते हैं कि तुम हमें बताओ कि हम शादी की क्या तारीख रखें. What can I say, your highness? We will do as you wish. The old woman said, secretly glad by now. तो वो कहते हैं कि मैं इसमें क्या कह सकती हूँ, योर मैजेस्टी और योर हाइनेस, जैसा आप चाहें आप वैसा करें. सो वो ये सब कहती है एंड इनसाइड शी इज़ हैप्पी. द वेडिंग अरेंजमेंट्स बिगिन. तो शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं. द फैमिली मेड रिचुअल डिजाइंस ऑन द वेडिंग फ्लोर एज लार्ज एज द स्काई एंड बिल्ड अ कैनोपीड सेरेमोनियल टेंट पंडाल एज लार्ज एज द अर्थ. तो जब शादी की सारी तैयारियां शुरू हो जाती हैं सो फैमिली रिचुअल डिज़ाइंस बनाने लग जाती है वेडिंग के फ्लोर पर, ठीक है. और एक बहुत ही बड़ा ऊंचा सा टेंट लगाते हैं जिसे पंडाल बोलते हैं, जो कि ऐसा लग रहा था कि पूरे अर्थ को कवर कर रहा है. और जो डिज़ाइन नीचे बनाए गए थे अर्थ पे वो ऐसा लग रहा है कि जैसे वो एक पूरे स्काई के एंड तक है वो. ऑल द रिलेटिव्स अराइव्ड एट एन ऑस्पिशियस मोमेंट. द गर्ल हु न्यू हाउ टू बिकम अ फ्लावरिंग ट्री वाज गिवन इन मैरिज टू द प्रिंस. और सारे रिलेटिव्स आते हैं फ्रॉम बोथ द फैमिली और एक बहुत ही ऑस्पिशियस मोमेंट पे वो लड़की जो कि कन्वर्ट हो सकती थी फ्लावरिंग ट्री में, उनकी शादी करवा दी जाती है टू द prince. After the nuptial ceremony, the families left the couple alone together in a separate house, but he was aloof and so was she. 2 nights passed, let him talk to me, thought she, let her begin, thought he. So both groom and bride were silent. और जब ये पूरी शादी की सारी सेरेमनी और सारी रिचुअल्स हो जाते हैं तो दोनों फैमिलीज़ उन कपल्स को अकेला छोड़ देते हैं एक अलग सेपरेट हाउस में. और जो प्रिंस था वो भी बहुत ज़्यादा थका हुआ था और एक तरीके से बोर था.
तो एंड सो वॉज द डॉटर, द यंगर डॉटर ऑफ द वुमेन. सो 2 रातें चली जाती हैं. जो लड़की होती है वो ये सोचती है कि उन्हें ही बात करने दो, आई विल नॉट इनिशिएट द कॉन्वर्सेशन एंड लेट हर बिगिन. एंड दिस वॉज द सेम थॉट द प्रिंस वॉज थिंकिंग कि यही बात स्टार्ट करेगी, मैं कॉन्वर्सेशन स्टार्ट नहीं करूँगा. सो इस तरीके से दोनों ब्राइड एंड ग्रूम दे बोथ वर साइलेंट. Now on the third night, the girl wondered, he hasn't uttered a word. Why did he marry me? तो जब 2 रातों तक उनकी कोई बातें नहीं होती हैं तो जो लड़की होती है वो ये सोचने लग जाती है कि इन्होंने अभी तक एक वर्ड नहीं बोला है. सो वाई हैज़ ही मैरिड मी? शी आस्क्ड हिम अलाउड, इज़ इट फॉर दिस ब्लिस यू मैरिड मी? और वो बहुत ज़ोर से उनसे पूछती है, क्या तुम इस वजह से तुमने मेरे से शादी करी थी? इज़ इट फॉर दिस ब्लिस यू हैव मैरिड मी? ही आंसर्ड रफली, आई विल टॉक टू यू ओनली इफ़ यू डू व्हाट आई आस्क. और वो बहुत ही रफली और रूडली उसे जवाब देता है कि मैं तुमसे तभी बात करूँगा जब तुम वो काम करोगी जो मैं करने को कहूँगा. वॉन्ट आई डू एज माई हस्बैंड बाइट्स मी? टेल मी वॉट यू वॉन्ट. और वो ये लड़की कहती है कि क्या मैं वो काम नहीं करूँगी जो मेरा हस्बैंड मुझे करने को कहेगा, बताओ तुम क्या करवाना चाहते हो. You know how to turn into a flowering tree, don't you? Let me see you do it. We can then sleep on flowers and cover ourselves with them. That would be lovely, he said. So जो प्रिंस होता है वो ये बोलता है दैट तुम जानते हो कि किस तरीके से तुम एक फ्लावरिंग ट्री में कन्वर्ट हो सकती हो, और तुम ये सब जानती हो, है ना. तो मुझे ये सब देखना है. एंड देन द फ्लावर्स from which I will get from the flowering tree. उन फ्लावर्स में हम एक दूसरे को कवर करेंगे and then we will sleep and that would be a lovely thing to do, he said. My lord, I am not a demon, I am not a goddess, I am an ordinary mortal like everyone else. Can a human being ever become a tree? She said very humbly. Now she is trying to hide the fact that she is able to convert into a tree. So she is trying to hide, maybe because her mother has taught her to hide, or maybe she is just a little scared that if we get to know her secret of converting into a flowering tree will get exposed to everyone. So she said that, my lord, ना ही मैं कोई राक्षस हूँ, ना ही मैं कोई देवी हूँ. आई एम जस्ट अ ऑर्डनरी मॉडल. मैं एक ऑर्डनरी इंसान हूँ, जस्ट लाइक एवरीवन एल्स हेयर. और क्या कोई ह्यूमन बीइंग एक ट्री में कन्वर्ट हो सकता है? वो बहुत ही आराम से और प्यार से humbly ये पूछती है. I don't like all this lying and cheating. I saw you the other day becoming a beautiful tree. I saw you with my own eyes. If you don't become a tree for me, for whom will you do that? He chided her. और किंग अभी भी बहुत रफली और रूडली उनसे पूछता है और बोलता है कि मुझे ये सब झूठ और ये चीटिंग बिल्कुल पसंद नहीं है. मैंने तुम्हें अगले दिन देखा था कि किस तरीके से तुम एक ब्यूटीफुल ट्री में कन्वर्ट हुई थी, और ये सब चीज़ें मैंने अपनी खुद की आंखों से देखी थी. अगर तुम मेरे लिए ट्री नहीं बनोगी तो किसके लिए बनोगी? So these are the words which the prince is asking to that girl who is able to convert into a flowering tree very roughly and rudely. The bride wiped a tear from her eyes with the end of her sari and said, don't be angry with me. If you insist so much, I will do as you say. Bring 2 pitchers of water. So now when the prince has shouted on her or chided her roughly and rudely, now the bride has been started to crying. So she wiped a tear. वो रोने लग जाती है अब. तो अपने आंसू पूछती है फ्रॉम द एंड ऑफ हर साड़ी, और उनसे बोलती है कि ओके, तुम मुझ पर गुस्सा मत हो. अगर तुम इतना ही इंसिस्ट कर रहे हो सो जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही करूँगी. 2 pitchers ऑफ वाटर लेकर आओ, यानी कि पानी के 2 मटके लेके आओ, ठीक है. ही ब्रॉट देम, वो उन्हें ले आता है. शी अटर्ड चैंट्स ओवर देम, वो उन पर चैंट अपने करती है, रिचुअल्स एज अकॉर्डिंग टू देम. एंड मीन वाइल ही शट ऑल द डोर्स एंड ऑल द विंडोज़. और जब तक वो उनको उन पिक्चर्स पर चैंट करती है the bride, what the prince do, he shut all the doors and the windows of that house. She said, remember, pluck all the flowers you want, but take care not to break a twig or a tear of leaf. वो उनसे बोलती है कि याद रखना कि तुम्हें जितने फ्लावर्स चाहिए तुम उतने फ्लावर्स तोड़ लेना, बट कोई भी ट्विग या फिर कोई भी लीफ मत तोड़ देना. Then she instructed him on how and when to pour water while she sat in the middle of the room meditating on God. और फिर वो अपने प्रिंस को ये बताती है और उनको इंस्ट्रक्ट करती है कि तुम्हें किस तरीके से मेरे ऊपर पानी डालना है, और वो रूम के बीच में बैठ जाती है, बिल्कुल बीचों बीच, मेडिटेटिंग ऑन गॉड, मेडिटेशन करने. द प्रिंस पोर्ड 1 pitchful of water over her. पिचरफुल ऑफ वाटर. तो जो प्रिंस होता है वो एक मटके का पानी उसके ऊपर डाल देता है.
शी टर्न इनटू अ फ्लावरिंग ट्री, वो एक फ्लावरिंग ट्री में कन्वर्ट हो जाती है। द फ्रेग्रेंस ऑफ द फ्लावर फिल्ड द हाउस, और जो खुशबू होती है उन फ्लावर्स की वो पूरे घर में फैल जाती है। ही प्लग्ड ऑल द फ्लावर्स ही वांटेड एंड देन स्प्रिंकल्ड वाटर फ्रॉम द सेकंड पिक्चर ऑल ओवर द ट्री। वो उन सारे फ्लावर्स को इकट्ठा कर लेता है जो जो उसे चाहिए थे, और फिर दूसरे पिक्चर का पानी उस पेड़ पर डाल देता है। इट बिकम हिज ब्राइड अगेन एंड अगेन द ट्री कन्वर्टेड इनटू हिज ब्राइड। शी शुक हर ट्रेसेस एंड स्टूड अप स्माइलिंग, और वो अपने ट्रेसेस को या फिर अपने हेयर्स को उन्हें ऐसे झाड़ती है और खड़ी हो जाती है while smiling. They spread the flowers, covered themselves with them, and went to bed. And then they spread the flowers which were plucked by the prince, and they slept in them. They did this again and again for several days, और उन्होंने यही रिचुअल और सेरेमनी रोज करनी स्टार्ट करी, which represents the sexual relationship between the bride and the groom. Every morning the couple threw out all the withered flowers from the window, and after the ceremony, or we can say the relationship has been done between the bride and the groom, they throw all those withered flowers out of the window of that room. The heap of the flowers lay there like a hail. So they have been doing this the ceremony of plucking the flowers and throwing them out of the window was done regularly, so the flowers has continued to heap like a hill out of the window. The king's younger daughter saw the heap of withered flowers one day and said to the queen. अब किंग की जो सबसे छोटी बेटी होती है वो उस हीप को देख लेती है फ्लावर्स के, और क्वीन से बोलती है, यानी कि अपनी मदर से बोलती है, लुक मदर, ब्रदर एंड सिस्टर इन लॉ वियर एंड थ्रो अवे अ होल लॉट ऑफ फ्लावर्स। कि देखो मदर, जो ब्रदर है और उनकी जो वाइफ है वो रोज़ इतने सारे फ्लावर्स जो हैं फेंक देते हैं। द फ्लावर्स दे हैव थ्रोन अवे आर पाइल्ड अप लाइक अ हिल, और जो फ्लावर्स वो फेंकते हैं उनकी एक हिल बनी हुई है पूरी। एंड दे हैवंट गिवन मी इवन वन, और उन्होंने मुझे एक भी नहीं दिया। द क्वीन कंसोल्ड हर, जो क्वीन होती है वो उन्हें कंसोल करती है, डोंट बी अपसेट, वी विल गेट देम टू गिव यू सम। वो कहती है कि तुम इतने दुखी मत हो, मैं उनसे कहूँगी तो वो तुम्हें देंगे। वन डे द प्रिंस हैड गॉन आउट समवेयर, और एक दिन जो प्रिंस है वो कहीं पर जा रखे होते हैं। देन द किंग्स डॉटर हु हैड मीनवाइल स्पाइड एंड डिस्कवर्ड द सीक्रेट ऑफ द फ्लावर्स कॉल्ड ऑल हर फ्रेंड्स एंड सेड, लेट्स गो टू द स्विंग्स इन द Surhan orchard and we will take my sister-in-law. She will turn into a flowering tree. If you all come, I will give you flowers that smell wonderful. तो एक दिन जब प्रिंस कहीं पर गए हुए होते हैं और वो पैलेस में नहीं होते हैं, तो किंग की जो डॉटर होती है जिन्होंने सीक्रेटली स्पाई कर रखा था ऑन द सीक्रेट ऑफ दोज फ्लावर्स, वो अपने सारे फ्रेंड्स को बुला लेते हैं और उनसे बोलती हैं कि चलो सुरहम ऑर्किड द we can say the valley of the flowers, or you can say in simpler words a garden. चलो गार्डन में जाते हैं, वहाँ पर स्विंग्स में खेलेंगे, झूले हैं वहाँ पर हम खेलेंगे, और मैं अपनी सिस्टर इन लॉ को भी लेकर आऊँगी, मैं अपनी भाभी को भी लेकर आऊँगी, वो एक फ्लावरिंग ट्री में कन्वर्ट होंगी, और अगर तुम सब आओगे तो मैं तुम्हें ऐसे फ्लावर्स दूँगी जो कि बहुत ही अच्छे स्मेल करते हैं, जिनकी फ्रेग्रेंस बहुत ज़्यादा अच्छी है। देन शी आस्क्ड हर मदर्स परमिशन, और फिर वो अपनी मदर की परमिशन मांगती है फॉर द सेम थिंग। द क्वीन सेड ऑफ कोर्स डू गो, हु विल से नो टू सच थिंग्स। तो क्वीन कहती है कि हाँ ज़रूर तुम जाओ, और ऐसे कामों के लिए मना कौन करेगा। Okay, so where were we? Yeah, who will say no to such things? The daughter then said, but I can't go alone, send sister-in-law. So the daughter is now very clever. She said that I wanted to go to play with my friends, so can I go to the Surham orchard, which is mentioned here? So the queen obviously said yes, because she was going to play. And now the daughter is saying that मैं अकेली नहीं जा सकती, तो तुम sister-in-law को मेरे साथ भेजो। देन गेट योर ब्रदर्स परमिशन एंड टेक हर। एंड द क्वीन सेड कि ठीक है, तुम अपने ब्रदर की परमिशन लो और उसको ले जाओ। द प्रिंस केम देयर जस्ट देन एंड हिज सिस्टर आस्क्ड हिम, और तभी वहाँ पर प्रिंस आ जाता है और उनकी बहन उनसे पूछती है कि ब्रदर वी आर ऑल गोइंग टू द सुरहम ऑर्किड टू प्ले ऑन आवर स्विंग्स, कैन सिस्टर इन लॉ कम अलॉन्ग। एंड वो अपने भाई से पूछती है कि भाई हम सब सुरहम ऑर्किड जा रहे हैं अपनी स्विंग्स पर खेलने के लिए, तो क्या सिस्टर इन लॉ हमारे साथ आ सकती हैं। इट्स नॉट माई विश दैट्स इम्पॉर्टेंट, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन मदर, ही आंसर्ड। सो द प्रिंस इज वेरी ओबेइंग टू हिज मदर। ही सेड कि मेरी विश नहीं है जो कि इम्पॉर्टेंट है, एवरीथिंग और एवरी डिसीजन इज डिपेंडेंट ऑन माई मदर।
So she went back to the queen and complained, Mother, if I ask brother, he sends me to you. But you don't really want to send her. So you are giving me excuses. Is your daughter in law more important than your daughter? Now the girl is simply envious of her sister-in-law, which is reflected in her words. She said that mother, अगर मैं भाई से पूछती हूँ तो वो मुझे तुम्हारे पास भेज देते हैं, लेकिन तुम सिस्टर इन लॉ को भेजना नहीं चाहती हो, तो इसलिए तुम सिर्फ एक्सक्यूजेस बना रही हो कि इससे पूछो इससे पूछो. क्या तुम्हें तुम्हारी डॉटर इन लॉ ज़्यादा अच्छी लगती है in comparison to your daughter? The queen rebuked her, saying, Don't be rude, alright? Take your sister in law with you, take care of her, and bring her back safely by evening. So maybe the queen is aware of the intention of her daughter, but still she loves her daughter. She said कि okay, तुम इतना रूड मत हो, अपनी सिस्टर इन लॉ को तुम अपने साथ ले जाओ, उनका ध्यान रखो और सेफली उन्हें घर पर वापस ले आना टिल द इवनिंग. Reluctantly, the queen sent her daughter-in-law with the girls. Or reluctantly, the queen doesn't wanted to send her daughter-in-law with her daughter because maybe she was aware of the intentions of her daughter, or maybe she doesn't want her to leave the palace for some reason. That is some unknown reason. Okay, so reluctantly जो queen होती है वो अपनी daughter in law को उन लड़कियों के साथ भेज देती है. Everyone went to the Surham orchard. सब जाते हैं सुरहम ऑर्किड में. The tide swings to a big tree. वो अपने झूले लगाते हैं swings बड़े बड़े पेड़ों से. Everyone was playing on the swings merrily. सब लोग खेल रहे थे बहुत ही अच्छे से. Abruptly the king's daughter stopped all games, brought everyone down from the swings and accosted her brother's wife. और अचानक ही जो वो लड़की होती है किंग की डॉटर जो है द यंगर डॉटर, वो सारे गेम को रुकवा देती है, सबको स्विंग से नीचे उतार कर अपनी ब्रदर की वाइफ से बोलती है कि सिस्टर इन लॉ यू कैन बिकम अ फ्लावरिंग ट्री, कांट यू? लुक, नो वन हेयर हैज एनी फ्लावर्स फॉर देयर हेयर. द सिस्टर इन लॉ रिप्लाइड एंग्रीली, just a second, so the younger daughter said to her brother's wife कि सिस्टर इन लॉ तुम एक फ्लावरिंग ट्री में कन्वर्ट हो सकती हो, है ना, और देखो यहाँ पर किसी के बालों में भी फूल नहीं है. तो द सिस्टर इन लॉ रिप्लाइड एंग्रीली, हु टोल्ड यू सच नॉनसेंस? एम आई नॉट अनदर ह्यूमन बीइंग लाइक यू? डोंट टॉक क्रेजी स्टफ. तो द सिस्टर इन लॉ नाउ शी गेट्स एंग्री एंड टोल्ड यू, तुम्हें ये नॉनसेंस किसने बताई? क्या मैं तुम्हारी तरह एक ह्यूमन बीइंग नहीं हूँ? तो ये पागलपन वाली बातें मेरे से मत करो. द किंग्स डॉटर टॉन्टेड हर. नाउ द किंग्स डॉटर, मे बी शी इज मैनरलेस, शी टॉन्टेड हर सिस्टर इन लॉ. शी सेड, ओहो, आई नो ऑल अबाउट यू. माई फ्रेंड्स हैव नो फ्लावर्स टू वियर. आई आस्क्ड माई सिस्टर इन लॉ टू बिकम अ ट्री एंड गिव अस सम फ्लावर्स, एंड लुक हाउ कॉय शी एक्ट्स. यू डोंट वांट टू बिकम अ ट्री फॉर अस. Do you do that for your lovers? And now the king's daughter, definitely she is mannerless. She said that मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है, मेरे फ्रेंड्स के पास बिल्कुल भी फ्लावर्स नहीं है पहनने के लिए, और मैंने अपनी सिस्टर इन लॉ से कहा है एक ट्री बनने के लिए ताकि वो हमें फ्लावर्स दे सके. एंड लुक हाउ मीन शी इज़ एक्टिंग. एंड क्या तुम हमारे लिए एक ट्री नहीं बन सकती हो? कि क्या ये सब काम तुम सिर्फ अपने लवर्स के लिए ही करोगे? You are awful. My coming here was a mistake, said the sister-in-law sadly, and she agreed to become a tree. And now the sister-in-law is aware of the intentions of the girl, and she said that you are very awful, and now I am regretting why I came here with you. एंड शी सेड दैट कि मेरा यहाँ पर आना ही बहुत बड़ी गलती थी. एंड देन शी लेटर ऑन एग्रीड टू कन्वर्ट हर सेल्फ इन टू अ फ्लावरिंग ट्री. शी सेंट फॉर 2 pitchers of water, uttered chants over them, instructed the girls on how and when to pour the water, and sat down to meditate. तो वो उनसे इसी तरीके से पानी के 2 घड़े मंगवाती है, उनके ऊपर चैंट्स पढ़ती है, लड़के को समझाती है कि किस तरीके से उन्हें उनके ऊपर पानी डालना है, और वहाँ पर मेडिटेट करने के लिए बैठ जाती है. द सिली गर्ल्स डिडंट लिसन carefully. Now, as the daughter was as her companion or the friend circle, the girls didn't listen carefully to the sister-in-law.
They poured the water on her indifferently here and there, and she turned into a tree, but only half a tree. और वो उनके ऊपर indifferently अलग अलग जगह पर पानी डालते हैं और वो ट्री में तो कन्वर्ट हो जाती हैं बट हाफ ट्री में कन्वर्ट होती है. इट वॉज ऑलरेडी इवनिंग एंड इट बिगेन टू रेन. और वैसे ही बहुत ज़्यादा शाम हो रही थी और फिर अचानक से बारिश होना शुरू हो जाती है विथ थंडर एंड लाइटनिंग. और बहुत ज़्यादा लाइटनिंग और थंडर भी हो रही थी. इन देयर ग्रीड टू गेट द फ्लावर्स दे टोर अप द स्प्राउट्स एंड ब्रोक द ब्रांचेस. और सिर्फ फ्लावर्स को पाने की लालच में और उसकी ग्रीड में वो उनकी स्प्राउट्स और ब्रांचेस को भी तोड़ देते हैं. दे वर इन अ हरी टू गेट होम. अब वो जल्दी में थे कि किस तरीके से बस वो घर जाए उन फ्लावर्स को लेके. तो उन्होंने बहुत ही ज़्यादा केयरलेसली उन फ्लावर्स को लेकर सो दे पोर द सेकेंड पिचर ऑफ वाटर एट रैंडम एंड रैन अवे. और ऐसे ही रैंडमली उन्होंने सेकेंड पिचर का पानी उसके ऊपर डाल दिया over the sister-in-law और वहाँ से वो भाग गए. When the princess changed from a tree to a person again, she had no hands or feet. और जैसे ही princess एक person में convert हुई तो उसके ना ही हाथ थे ना ही पैर थे. She had only half a body. She was a wounded carcass. वो एक half body थी of a human और वो एक wounded carcass थी. Somehow in that flurry of rain water she crawled and floated into a gutter. और अब रेन वाटर बहुत ज़्यादा accumulate हो रहा था वहाँ पर उस ऑर्किड में. सो वो एक गटर में जाकर क्रॉल हो गए बिकॉज शी हैज़ नो हैंड एंड नो legs to maintain the balance of her body. That's not a body, a wounded carcass. So she got struck in a turning, and the turning in the gutter or the sewage, and which was long away from her home. Next morning, 7 or 8 cotton wagons were coming that way, and the driver spotted a half-human thing groaning into the gutter. और अगली सुबह कुछ cotton wagons वहाँ से जा रहे थे. इट्स लेकिन 7 और 8 कॉटन वैगन्स वहाँ से जा रहे थे. तो जो ड्राइवर होता है वो एक हाफ ह्यूमन थिंग को वहाँ पर देखता है गटर में आवाज़ देते हुए. द फर्स्ट कार ड्राइवर सेड सी व्हाट दैट नॉइज इज़ अबाउट. तो जो पहला कार ड्राइवर होता है वो बोलता है कि देखो वहाँ से वो कैसी नॉइज़ आ रही है. The second one said, "Hey, let's get going. It may be wind or it may be some ghost. Who knows?" The second one says कि ऐसा करते हैं चलते हैं, इग्नोर करो, वो मे बी हवा हो सकती है या फिर कोई घोस्ट हो सकता है, किसको पता है. The last car driver stopped his cart and took a look. लेकिन जो लास्ट कार ड्राइवर होता है वो अपनी कार्ट को रोकता है और एक लुक वहाँ पे जाकर देखता है. There lay a shapeless mass, a body. और वहाँ पर एक shapeless body पड़ी हुई है. Only the face was a beautiful woman's face. The face is visible which resembles a beautiful woman's face, and she wasn't wearing a thing, and there was not a single piece of clothing on that body or a wounded carcass. Ayo, some poor woman, he said in sorrow, and in sorrow and deep grief, mistaking it for something else. Maybe he said that there is some poor woman, and threw his turban cloth over her. और वो अपनी टर्बन का क्लोथ उसके ऊपर उसकी बॉडी के ऊपर डाल देता है. and carried her to his cart, paying no heed to the dirty banter of his fellows. So the cart driver was a very nice and caring person. He helped the woman took out of that gutter and gave him his turban cloth to cover her naked body, and then carried her to his cart. उन्हें अपनी कार्ट में बिठाया, and he paid no attention or heed to what his fellow cart drivers were saying to him. Soon they came to a town, और उसके बाद वो टाउन में आए. They stopped their carts there and lowered this thing into a ruined pavilion. और वो वहाँ पर आकर उसको एक थिंग थी जिसके हाथ थे ना ही पैर थे, उसको वहीं पर एक पवेलियन में छोड़ देते हैं. Before they drove on, the car driver said, "Somebody may find you and feed you. You will survive." Then they drove on, and then the car driver said कि कोई ना कोई तुम्हें ढूंढ लेगा और तुम्हें कुछ ना कुछ खाने को दे देगा, तो तुम सर्वाइव कर जाओगी. और फिर वो वहाँ से चले जाता है. So this was the enough help which a human can do to such thing when this type of thing can happen to anyone. When the king's daughter came home alone, the queen asked her, "Where's your sister-in-law? What will your brother say?" The girl answered casually, "Who knows? Didn't we all find our own way home? Who knows where she went?" So now definitely the king's daughter is mannerless and very envy of her sister-in-law. When जब वो अपने घर जाती है वापस, तो जो क्वीन होती है वो अपनी डॉटर से पूछती है कि तुम्हारी सिस्टर इन लॉ कहाँ पर है, तुम अपने भाई से क्या कहोगी.
सो बहुत ही कैजुअली वो आंसर देती है कि किसको पता है, क्या सब अपना घर नहीं ढूंढ सकते, और मुझे क्या पता कि वो कहाँ गई है. द क्वीन पैनिक्ड एंड ट्राइड टू गेट द फैक्ट्स आउट ऑफ द गर्ल. अयो यू कांट से सच थिंग्स, योर ब्रदर विल बी एंग्री, टेल मी व्हाट हैपेंड. तो जो क्वीन होती है वो बहुत ज़्यादा पैनिक कर जाती है और उस लड़की से अब सच उगलवाना चाहती है. तो वो बोलती है कि तुम ऐसी बातें नहीं बोल सकती, तुम्हारे भाई को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाएगा, तो मुझे बताओ कि क्या हुआ है. द गर्ल सेड वट एवर केम टू हर हेड. तो उस लड़की के दिमाग में जो भी आया उसने वो बोल दिया. दिमाग तो था ही नहीं, वट एवर. द क्वीन फाइंड आउट नथिंग. तो क्वीन को कुछ भी पता नहीं चला बिकॉज शी मेड unimaginable story. She had a suspicion that her daughter had done something foolish. That's not a suspicion, that's a truth. So she said that the queen is now suspicious of her own daughter, that definitely she has done something foolish to her sister-in-law. And after waiting several hours, the prince talked to his mother. बहुत घंटों वेट करने के बाद जो प्रिंस होता है वो अपनी मदर से बोलता है, अम्मा अम्मा व्हाट इज़ इट सन. सो ही कॉल्ड हिज मदर एंड देन द क्वीन आस्क्ड कि क्या हुआ है. व्हाट हैज़ हैपेंड टू माई वाइफ, शी वेंट टू द ऑर्किड टू प्ले ऑन द स्विंग्स एंड नेवर केम बैक. कि मेरी वाइफ के साथ क्या हुआ है, वो ऑर्किड गई थी खेलने के लिए स्विंग्स पे, बट वहाँ से वो कभी वापस ही नहीं आई. Oh Ram, I thought she was in your bedroom all this time. Now you are asking me. And now maybe the queen is terrified of her son also. She said कि oh God, मुझे तो ये लगा था कि वो तुम्हारे बेडरूम में है इस पूरे टाइम पे, और अब तुम मुझसे ये बात अब पूछ रहे हो. Oh, something terrible has happened to her, thought the prince. Now the prince is thinking कि उसके साथ ज़रूर कुछ ना कुछ गलत हुआ है. He went and lay down in grief. अब now the prince is struck in a grief and sorrow. 5 days passed, 6 days passed, 15 days passed, but there was no news of his wife. Now the days has been passing by, but no news of his wife has been arriving to him. They couldn't find her anywhere, so the prince is not able to locate his dearly wife. Did the stupid girls push her into a tank? Now the prince is asking the questions to someone. She said, क्या उन बेवकूफ़ लड़कियों ने मेरी वाइफ को टैंक में डाल दिया है? Did they throw her into a well? या फिर किसी कुएं में डाल दिया है? My sister never liked her. मेरी बहन को मेरी वाइफ बिल्कुल पसंद नहीं थी. What did the foolish girls do? उन foolish लड़कियों ने क्या करा है? Definitely the foolish girls. He asked his parents. उन्होंने अपने parents से पूछा. The prince is asking his parents, his servants. What could they say? The two were worried and full of fear. अब ना ही उसके पेरेंट्स कुछ बोल सकते थे, ना ही वहाँ के सर्वेंट्स कुछ बोल सकते थे, ठीक है, बिकॉज वो सब भी बहुत ज़्यादा परेशान थे और उनके अंदर भी बहुत ज़्यादा डर था. In disgust and despair, he changed into an ascetic's long robe and went out into the world. And now he was very disgusted by this incident, or very sorrowful or despaired by the loss of his wife. So he changed his clothing of a prince to an ascetic's long robe, and he went out to the world searching his wife. So he just walked and walked, not caring where he went. So without thinking where he is going, he continues walking, not caring in which direction or where he is going, maybe into the thoughts of his wife. Meanwhile, the girl, who was now a thing, somehow reached the town into which her husband's elder sister had been given in marriage. और इसी बीच जो लड़की है, विच इज़ जस्ट नाउ रिड्यूस टू अ थिंग, समहाउ वो एक टाउन में पहुंच जाती है जहां पर उसकी हस्बैंड की जो बड़ी बहन है वहां पर उनकी शादी हुई थी. सो अर्लियर इन द स्टोरी इट वॉज टोल्ड कि जो किंग है उनके 3 बच्चे हैं, 2 लड़कियां हैं और 1 प्रिंस है. सो देर इज अ ओल्डर सिस्टर, दैट द मिडल वन इज द प्रिंस एंड यंगर इज द डॉटर विच इज अ फुलिश वन. Okay, so now the girl, a thing which has somehow reached the town, अब वो उस वाले टाउन में पहुंच गई है जहाँ पर प्रिंस की बड़ी बहन की शादी हुई थी. Every time the palace servants and maids passed that way to fetch water, they used to see her. अब जब भी वहाँ से पैलेस के सर्वेंट्स या मेड्स उस रास्ते से निकलते थे तो वो वहाँ से उस थिंग को, जो कि उनकी ब्रदर की वाइफ थी, वहाँ पर उनको देखती थी. Just a second. Okay. They would say to each other, she glows like a king's daughter. So they said to them that the thing which is put there on the road, that glows like a king's daughter because she is beautiful. And then one of them couldn't stand it any longer and decided to tell the queen. और उन्हीं सर्वेंट्स में से
किसी एक से रुका नहीं गया और वो इस बारे में पूरी चीज़ जो है वो क्वीन को बता देते हैं, ठीक है। देन अम्मा अम्मा शी लुक्स वेरी मच लाइक योर यंगर ब्रदर्स वाइफ, और लुक थ्रू द सीइंग ग्लास एंड सी फॉर योर सेल्फ। और वो मे बी समवन इज टेलिंग टू द क्वीन, okay, the servant, definitely the servant is saying to the queen that amma amma, see, this thing looks very much similar to your younger brother's wife, ये तुम्हारे छोटे भाई की वाइफ की तरह लग रही है, देखो सीइंग ग्लास के थ्रू और खुद देखो। the queen looked and the face did seem strangely familiar, तो जो क्वीन होती है वो बहुत ध्यान से देखती है और उसे वो फेस बहुत ज़्यादा फेमिलियर दिखता भी है। on the maid suggested amma can I bring her to the palace, should I, एंड देन द मेड्स कह कि क्या मैं इसको पैलेस में ले आऊँ। द क्वीन फूड इट, वी विल हैव टू सर्व हर एंड फीड हर, फॉरगेट इट। Now the queen is also doing such a thing that she is just avoiding this thing to bring to her palace. She said that ignore it, अगर हम उसको यहाँ पे लेके आएंगे तो हमें उसको सर्व और फीड करना पड़ेगा, so just forget about it. So the next day again the maids mumbled and moaned, she is very lovely, she will be like a lamp in the palace, can we bring her here? So नेक्स्ट डे अगेन जो मेड्स होती हैं वो अपनी क्वीन से बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट कर कर बोलती हैं कि शी लुक्स वेरी प्रिटी, शी इज़ लवली, शी इज़ ब्यूटीफुल, सो शी विल लुक वेरी गुड इन द पैलेस लाइक अ लैम्प, सो क्या हम उसको यहाँ पर लेके आ सकते हैं? ऑल राइट, ब्रिंग हर इफ़ यू विश, बट यू विल हैव टू टेक केयर ऑफ हर विदाउट नेग्लेक्टिंग पैलेस वर्क, ऑर्डर द क्वीन। सो द क्वीन ऑन द वेरी मच रिक्वेस्ट ऑफ हर मेड और सर्वेंट शी सेड कि ठीक है तुम उसको ले आओ अगर तुम लाना चाहते हो, बट उसका ध्यान तुम्हें रखना पड़ेगा और उसकी वजह से पैलेस के वर्क में कोई भी कमी नहीं आनी चाहिए, ठीक है। ओके, आई हैव अगेन लॉस्ट द ट्रैक, वेट। दे एग्रीड एंड ब्रॉट द थिंग टू द पैलेस, ठीक है। अब जो सारे मेड जो सर्वेंट्स होते हैं वो एग्री कर जाते हैं और उस थिंग को पैलेस में लेके आ जाते हैं। दे बेथेड हर इन ऑयल्स, ड्रेस्ड हर वेल एंड सेट हर डाउन एट द पैलेस डोर, तो वो उसको पैलेस में लेकर आते हैं, उसको बात करवाते हैं ऑयल्स में, उसको अच्छी तरीके से ड्रेस करते हैं और पैलेस के डोर पर रख देते हैं। एवरी डे दे अप्लाइड मेडिसिन टू हर वुंड्स एंड मेड हर वेल, एंड एवरी डे द प्रिंसेस ऑफ द सर्वेंट्स दे अप्लाइड मेडिसिन टू हर वुंड्स, ताकि वो बहुत अच्छी तरीके से वो ठीक हो जाए। बट दे कुड नॉट मेक हर होल, लेकिन वो उन्हें पूरा नहीं कर सकते थे। दे कुडंट मेक हर हैंड्स और लेग्स अपीयर, शी ओनली हैड हाफ अ बॉडी, क्योंकि उसके पास सिर्फ हाफ बॉडी थी। नाउ द प्रिंस वॉन्डर्ड थ्रू पेरी लैंड्स एंड एंडेड अप आउटसाइड द गेट ऑफ हिज सिस्टर्स पैलेस, ही लुक्ड लाइक अ क्रेजी मैन। सो अब जो प्रिंस है दैट इज, जो कि इस वाले किंगडम की क्वीन का छोटा भाई है, जिसकी वाइफ के साथ ये सब हुआ है, वो अब घूमता घूमता वहाँ पर आता है अपनी सिस्टर्स पैलेस के पास। वो अब बहुत ही ज़्यादा एक क्रेजी मैन लग रहा था। हिज बियर्ड एंड विस्कर्स वर वाइल्ड, he wasn't looking human at all, and when the maids were fetching and carrying water they saw him, तो वहाँ पे जो maids होती हैं वो उसे देखती हैं, वो वापस क्वीन के पास जाती हैं पैलेस में और बोलती हैं कि अम्मा someone is sitting outside the gate and he looks very much like your brother, look through the seeing glass and see, और वो बोलती है कि देखो कोई गेट के बाहर बैठा हुआ है और वो आपके भाई की तरह लग रहा है, तो जो सीइंग ग्लास है ना उसके थ्रू देखो। Grumbling indifferently, the queen went to the terrace and looked through the seeing glass, और कुछ अजीब सा बोलते हुए वो वहाँ पर जाती है सीइंग ग्लास में और देखती है। Now she was surprised, अब वो एकदम से शॉक हो जाती है। Yes, he does look remarkably like my brother, कि हाँ ये बिल्कुल मेरे भाई की तरह लग रहा है। What's happened to him, इसे क्या हुआ है? Has he become a wandering ascetic, क्या ये एक घूमता फिरता ऐसी आदमी बन चुका है? पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता, शी थॉट। शी सेंट हर मेड्स डाउन टू ब्रिंग हिम इन, दे सेड टू हिम द क्वीन वांट्स टू सी यू, तो वो अपनी मेड्स को भेजती है कि उन्हें अंदर लेकर आओ, और वो उनसे ये कहती है, जो मेड्स होती हैं वो उस ब्रदर के पास, उनके ब्रदर के पास जाती है और कहती है कि द क्वीन वांट्स टू सी यू। ही ब्रश्ड देम असाइड, व्हाई वुड शी वांट टू सी मी, ही टोल्ड। अब वो कहते हैं कि वो मुझसे क्यों मिलना चाहती है।
No, sir, she really wants to see you. Please come. They insisted and finally persuaded him to come in. और वो बहुत प्यार से उन्हें समझाकर persuade करके ले आती है कि नहीं नहीं सर, उन्हें आपसे मिलना ही है. The queen took a good look at him and knew it was really her brother. अब queen बहुत ध्यान से उसको देखती है और पहचान जाती है कि हाँ ये इसका ही भाई है. She ordered the palace servants to heat up whole pots of oil and great vessels of steaming water for his bath. और वो पूरे पैलेस के सर्वेंट्स को ये ऑर्डर दे देती है कि बहुत बड़े बड़े वेसल्स तैयार करो स्टीमिंग वाटर और ऑयल्स के फॉर हिज बाथ. शी सर्व्ड हिम एंड नर्स्ड हिम. वो उनको सर्व करती है, उनके लिए नर्सिंग करती है. फॉर शी न्यू बिकॉज क्योंकि वो उसका छोटा भाई था. शी सर्व्ड न्यू काइंड्स ऑफ डिनर ईच डे. वो रोज उन्हें नए नए डिनर खिलाती है. एंड ब्रॉट हिम न्यू स्टाइल्स ऑफ क्लोथिंग. अलग अलग तरह के नए कपड़े लेके आई. बट वट एवर शी डिड ही डिडंट स्पीक अ वर्ड टू हिज एल्डर सिस्टर to his elder sister. So obviously the prince know that she was his sister. So इतना सब कुछ होने के बाद भी जब वो इतने अच्छे तरीके से अपने भाई को ट्रीट कर रही थी, बट द प्रिंस नेवर सेड अ सिंगल वर्ड टू हिज सिस्टर. He didn't even ask who are you, where am I. By this time they both knew they were brother and sister. और ना ही उसने ये पूछा कि तुम कौन हो, मैं कहाँ पर हूँ, क्योंकि उसे पता था कि वो दोनों भाई बहन हैं. The queen wondered. I think the lecture is going too long, so the next page, that is 132, we will be covering in next video. So thank you so much for watching this video. The upcoming one will be covered in the next video. Thank you so much for watching this.